नाव काय तुझं? परशुराम. परशुराम. व्हेरी गुड. लक्षात आलंय माझ्या. काय झालंय? इथे त्याला कॅन्सर झालेला आहे. त्याला डोळ्याचा कॅन्सर होता. कुठलंही ऑर्गन काढताना किंवा शरीरातला भाग काढताना पेशंटला पूर्वकल्पना द्यायला लागते. हे ओझ आता नाका खांद्यावर टाकू माझ्या. परशुरामला वाचवण्याचा तो एकच मार्ग आहे. 2 मिनिटं डोळे बंद करून चालून दाखवा. मला माहिती आहे, मला दिसणार नाहीये. माना कि तुम्हारी और मेरी शादी नहीं हुई, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें कोई तकलीफ हो और तुम मुझे बता ना सको. क्या मैं इतना पराया हो गया हूं नीरू? देखो, चेहरे पर कोई खरोच नहीं, कोई दाग नहीं, एसिड से भी नहीं जला है. मेरा पति मुझे सचमुच बहुत चाहता है मनु. ये हमारी किस्मत थी कि हमारी शादी ना हो पाई, नहीं तो तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी होती. कितनी बार कहा, इसका रंग चूड़ियों से मैच करना चाहिए. इस रंग के तो गुलाब मिलते हैं. गाड़ी चाहे जो भी रंग की हो, मैं गुलाबों से भर दूंगा. मैं तुम्हारा घर बर्बाद करने नहीं आया नीरू. मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आया था. Shimaru is a pioneer in the business of home entertainment. For the last 4 decades, we've been at the forefront of the infinitely exciting Indian entertainment industry, and our brand is synonymous with quality entertainment in the country today. We've been at par with cutting-edge technology, with one of the most advanced, well-equipped digital studios. Our VCDs and DVDs match international quality standards. Our home video catalog is the best in the country. Over the years, we have gathered gems in Indian cinema and now proudly possess a catalog of over 800 titles. Whether it is romance, comedy, drama, suspense, or classics, we have the best in every genre. From the magnum opus of Indian cinema to the masterpieces, we have it all. Tickling our audience's funny bones is our all-time favorite collection of comedy. The sensational and very real new age cinema, they leave a lasting impact. Films that we all love, the complete entertainers, the blockbusters. Yesterday, you could only listen to your favorite songs. Today, you can watch them too with our specially created song compilation. Shimaru is now wooing its audience with an exciting collection of English titles too. Catching up with changing times, Shimaru's among the first few to bring the sports genre into home video entertainment. Shimaru introduces a collection of popular plays that is sure to be celebrated by every theatre lover. These are popular plays starring the stalwarts of Gujarati theatre. Most gifted actors, path-breaking stories, comedy, drama, action. Watch the complete collection of Marathi plays.
Cinema that speaks without words. Cinema that has made our country proud. These are Shimaru's collection of national award-winning movies. They are the maestros, the legends, the worshipped. Presenting the Gurus of Bandish, Pandit Bhimsen Joshi and Ustad Rashid Khan. Animated movies, cartoons, and even 3D films. There's lots more for you to check out in Shimaru's Kids Zone. Shimaru, entertainment infinite. हाँ सर, we are discussing protein. There he is. If you have experienced this while watching a VCD, chances are you are watching the pirated VCD. It's bad quality, it's a bad experience, it's a crime. Don't do it. Piracy not only affects the industry, it affects your player too. एक बेहतरीन फिल्म की पहचान उसकी ओरिजिनलिटी है. Why buy a pirated VCD or DVD when you can get the original at an affordable price? Please do not support piracy. Original VCDs and DVDs have good quality, are value for money, and will always remain a part of your collection of movies. Always buy your VCDs and DVDs from authorized retail stores. Watching a movie is an experience. Don't compromise on quality. Say no to piracy. Let's get together and fight piracy. And just like me, The original, buy original. Shimaru takes a walk down memory lane with the melodious tracks of R.D. Burman in Ultimate Unremix. Rejoice the evergreen journey of this most versatile music composer. 2 volumes now on DVD. Each volume contains 2 discs. Disc 1 of Volume 1 moves you with his romantic numbers. R.D. Burman, the eternal romantic. Disc 2 of Volume 1 has Asha singing for her lover boy. R.D. Asha, a musical legacy. Unwind, unfold, rejuvenate, and nourish your soul with R.D. Burman's Ultimate Unremix song compilation DVDs, now available on Shimaru. Shimaru captures the original voice of Asha. Asha, the Ultimate Unremixed, Volume 1 and Volume 2. Old forever remains gold. A quality that makes them forever memorable. 50 melodies presented in their original simplicity and splendor. A special 2 DVD song compilation value pack. Asha, the Ultimate Unremixed song compilation DVDs, now available on Shimaru or shop online at www.shimaru.com. तू धन्य है माँ, तूने कॉल देकर मुझे धर्म संकट से बचा लिया। तूने मेरी भक्ति की रक्षा की, तूने मेरी कर्तव्य की रक्षा की, तूने मेरी भावनाओं की रक्षा की माँ। तू धन्य है माँ। लिया सारा चाचा गया था, मुआ सारा चाचा गया था, सारा सारा
से वो मारे गांव आएगा चिट्ठी ना मिठी बंद थी मुट्ठी दबे पाँव से वो मारे गांव आएगा चिट्ठी ना मिठी बंद थी मुट्ठी मुट्ठी खुली तो ये भेद खुल गया अनदेखा अनजाना चुपके से चोरी करके चला है हाय कल तक था बेगाना वो अपना देखो बन के चला है हो अनदेखा अनजाना चुपके से चोरी करके चला कल तक था बेगाना वो अपना देखो बन के चला अनदेखा अनजाना चुपके से चोरी करके चला कल तक था बेगाना वो अपना देखो बन के चला अनदेखा अनजाना चुपके से चोरी करके चला हमने तो कुछ भी ना देखा सुना दोनों ने खुद को कब कैसे चुना हाँ हमने तो कुछ भी ना देखा सुना दोनों ने खुद को कब कैसे चुना हाँ कैसे चुना कानों कान कुछ भी मेरी चाल थी वो क्या क्या कमाल थी वो चिट्ठी ना मिठी बंद थी मुट्ठी मुट्ठी खुली तो ये भेद खुल गया अनदेखा अनजाना चुपके से चोरी करके चला संजोग ये है तकदीरों का इसमें ना किसी की है कोई खता संजोग ये है तकदीरों का इसमें ना किसी की है कोई खता बिना मांगे हमको मिला ये मोती तुमको भी तो हाँ तुमको हे तुमको भी तो एक हीरा मिला है कहारवा न कहूँ डोली को उठाऊं न कहूँ न चिट्ठी ना मिठी बंद थी मुट्ठी मुट्ठी खुली तो ये भेद खुल गया सारा
रीत की रीत विदाई भी है, हम वो निभाते हैं माँ, तेरी खुशी के आगे हम सर को झुकाते हैं माँ, सर को झुकाते। जय मां आशापुरा। जो एक बार भी मां आशापुरा की चौखट पर आता है, फिर वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चला जाए, वो मां की छत्र छाया में रहता है। जय मां आशापुरा। मम्मी, मैंने बोला था ना कि मुझे बिल्कुल परी जैसी मामी चाहिए। ये आ गई मेरी परी जैसी मामी। और मॉडर्न भी, जैसी मुझे भाभी चाहिए थी। तुम दोनों माँ बेटी की आंखें खराब हो गई हैं। तुम्हें तो देवेंद्र में भी राम नजर आया था और निकला क्या? रावण। मम्मी केसर तुम ही करो। मम्मी इतने चावल बच गए, अंदर रखवा दो। जी। नहीं नहीं रुको, कहते हैं चावल बचने से घर में बरकत ही बरकत आ जाती है। सचमुच धान्य लक्ष्मी है हमारी बहू। हाँ पापा, मुझे तो इनमें लक्ष्मी के सातों रूप नजर आते हैं। इसे यहाँ किसने बुलाया? अरे बरकत लाने वाली इन लक्ष्मी को यहाँ लाने वाले विष्णु को तो आप लोग भूल ही गए। कमाल है कमाल। अभी से ये हाल है। ये चावल हमें दो, ये माँ का आशीर्वाद है। हम इसे जिंदगी भर संभाल के रखेंगे। नमस्ते। ले ले माय स्वीट लिटिल डॉल, पिक्चर प्लीज। ये है मेरे सबसे पुराने और सयाने मित्र मिस्टर देसाई। क्या बात है वीर जी, क्या बहू ढूंढ कर लाए हो? बहू नहीं, बेटी कहिए। आपकी बहू के चेहरे का तेज देखकर मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये भी किसी शाही घराने से ताल्लुकात रखती है। जी हाँ मातानुमठ, एक ऐसा घराना जिसके आगे शाही घराना भी सर झुका दे। वीर जी भाई, यू आर वेरी लकी। थैंक यू। एंड सो एम आई मिस्टर डेंजुप्पा। शांतनु की शादी में कमाल का गाना हुआ। गहरी चाल थी वो, क्या क्या कमाल थी वो, चिट्ठी। एक्सक्यूज मी। लगता है तुम भी जान गए हो। जान गया हूँ? मैं समझा नहीं। मेरी सास को देखो। हाँ? वो नहीं चाहते थे कि ये शादी हो। क्या? पर जब मैंने भी मना किया तो उसका अहंकार जग गया। वो मेरे जाल में फंस गई और शंतनु की शहनाई बज गई। ओ वाह जीजा जी, हमारी भी शहनाई बजवा दो। हाँ हाँ बजवा देंगे, चिंता मत करो। लेकिन लड़की कहाँ है? लड़की तो है नहीं। लो लड़की भी नहीं। हाँ बताओ जीजा जी। पार्टी में नहीं मिली क्या? मुझे तो सारी लड़कियां पसंद है, पर कोई लड़की मुझे पसंद नहीं करती। आप भी बोल दो ना जीजा जी। पर हाँ चलेगी। बता देता हूँ। तो ठीक है, तुम्हारे लिए विदेश से इंपोर्ट करा देंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारे जमाई हैं देवेंद्र। इन्हीं की वजह से आज शांतनु की शादी हो पाई है। हमें इन पे बहुत गर्व है। अब जबकि ये शादी हो चुकी है और इनका काम हो गया है, मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ से चले जाएं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर इनमें थोड़ी सी भी शर्म बची हुई हो तो क्यों जमाई राजा, आपके लिए विदाई गीत गाया जाए। मम्मी जी जो चाहे कर लें, जो चाहे कह लें, पर शांतनु की शादी तो हो चुकी है। क्यों मम्मी जी? मम्मी जी ने अपने अहंकार को जिंदा रखने के लिए न जाने कितनों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है, पर लगता है कि अब हालात बदलने लगे हैं। उनका मुझ पर चिल्लाना इस बात को साबित करता है कि उनके अहंकार को भी जबरदस्त ठेस पहुंची है। और यह तो होना ही था, क्योंकि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं
किसी ना किसी रोज शेर को सवा शेर तो मिल ही जाता है। नमस्ते मम्मी जी। बेटा सुनो तो। अरे आप कब आए? कहाँ? इस दुनिया में या आपके दिल में? जिस कमरे में। ओह, इस कमरे में। इस कमरे में तो मैं तब आया जब आप अपने इन कमल जैसे होठों पर एक झूठी मुस्कान से जाने की कोशिश कर रही थी। झूठी मुस्कान? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस देखिए देखिए, आपके इस झूठी मुस्कान की कोई चुगली कर रहा है। चुगली? कौन चुगली कर रहा है? आपकी हीरे जैसी ये सच्ची आंखें। ये हुई ना कोई बात। अब आप देखिए, आपकी इस प्यारी सी मुस्कान को मैं खूबसूरत हंसी में कैसे बदलता हूँ। कैसे? ऐसे। कमल के फूल? नेहा, इन फूलों को तोड़ क्यों रही हो? आपको फूल अच्छे नहीं लगते? नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों? बस ऐसे ही। मैं समझ गई। आपको अपने पापा याद आ रहे नहीं? हाँ। तो फिर इसमें नाराज होने की क्या बात है? मेरे पापा भी तो मेरे पास नहीं है। हाँ? पर आप तो बड़ी है ना, इसलिए आपको कुछ नजर नहीं आता। अच्छा, तो फिर ठीक है, हम छोटे हो जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर ये देखो, ये लो, क्या हुआ? ये इतने छोटे हो गए? और ज्यादा, और ज्यादा। अब आप क्यों फूल तोड़ रही हैं? ये फूल तो मंदिर में पूजा के लिए है। पर यहाँ का मंदिर तो कितने दिनों से बंद पड़ा है। बिना मंदिर की हवेली ऐसी लगती है जैसे बिना प्राण का शरीर, निर्जीव सा। सरस्वती तू ज्ञान हमें दे, विश्व में थोड़ा मान हमें दे, गैरों के खातिर प्यारे दे दिल में, हमको भी रख तू अपने ही दिल में, गैरों के खातिर प्यारे दे दिल में, हमको भी रख तू अपने ही दिल में। काम क्रोध
आशापुरा। हर आशा बिन मांगे तू पूरी करती है माँ। मामा देखो तो मामी की आंखों में आरती। इतना ज्यादा मत देखो माय लिटिल डॉल, नहीं तो तुम जुगनू बन जाओगी और चमकने लगोगी आरती की तरह। तो मैं जुगनू ही बनूंगी। क्यों बनाओगी ना मामी? आप तो पहले से ही माँ का सबसे प्यारा तारा हो, खूब चमकने वाला। भाभी, आपके आने से तो वातावरण ही बदल गया है। देखो ना, नेहा कितने दिनों के बाद खुश नजर आ रही है। हाँ गायत्री, तुम सिर्फ माँ का आशीर्वाद ही नहीं, माँ का वरदान भी हो। क्यों केसर? हाँ, ये तो समय ही बताएगा। सासू माँ, ये बोलो बोलो, जय माँ आशापुरा। बोलो जय माँ आशापुरा। सर, एक बात कहूँ, आपको नहीं लगता इस अमेरिकन कंपनी के साथ साझेदारी करने में पटेल इंडस्ट्रीज के शेयर्स को रिस्क है? जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए नीचे गिरने का रिस्क उठाना जरूरी होता है। ऑलवेज रिमेंबर, नो रिस्क नो गेन। राइट? ओनली राइट बॉस इज ऑलवेज राइट। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर जॉन आ गए। आपको ऑफिस कैसा लगा सर? वेरी नाइस। प्लीज दिस वे। Hey, Mr. John. Hello, Mr. Shantanu. Welcome to India. Very nice, very nice. Thank you, thank you. This is our traditional Indian welcome, you know. They all have been eagerly waiting for you. Please have Coke. But this is not Indian. Well, this has been specially brought for you. अबे फिरंग तो आते ही होशियार बनने लग गया। हाँ, मूड तो ठीक है ना इसका? सर जी। So, Mr. John, can we get started? हाँ, शुरू करते हैं। हाँ, क्यों नहीं? शुरू क्या? सर, मैं पहले ही बताने वाला था, पर आप इसका मतलब जो कुछ भी I mean, कोई बात नहीं मिस्टर शांतनु। जैसा देश वैसी भाषा, इसलिए हिंदी का अध्ययन किया। आने से पहले 3 चलचित्र भी देखा। कमर्शियल या आर्ट? चालू मसाला। ध्यान रखो, एक भी फिरंगी शब्द नहीं बोला। ओह यस, वाकई। गायत्री। आ रही हूँ। अरे शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ। ये थैंक्स, लेकिन इसके अलावा भी कुछ भूल रहा हूँ। क्या? याद आया, ये। अच्छा, एक और बात है। आज नहीं। अरे ये सीरियस है। शाम को जॉन की पार्टी ठीक 8 बजे शुरू हो जाएगी, इसलिए समय से पहले पहुंच जाना, ओके? मैं थोड़ा लेट पहुंचूंगी। अरे ऐसा मत करना, अगर होस्टेस ही लेट आएगी तो फिर गेस्ट को रिसीव कौन करेगा? हाँ जियो, मैंने आज व्रत रखा है। व्रत? हाँ, इसलिए घर में हवन है। ऐसा कीजिएगा, आप उन्हें रिसीव कर लीजिएगा, मैं उन्हें विदा कर दूंगी। नॉट एक्सेप्टेबल माई लव, क्योंकि आज मैं मिस्टर जॉन को दिखाना चाहता हूँ कि मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है। इनफैक्ट मैं सबको जेलस करना चाहता हूँ। तुम देखना, तुम्हारे आते ही सब कैसे जल जाते हैं। I'm smelling it right now, Jan. ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। Thank you, Mr. Shantanu, for giving me the pleasure with this grand party. Correction, Mr. John. The pleasure is all ours. ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गे क्षमे। Mr. Hardy, meet Mr. John Matthew. Hello. How do you do? वो सब तो ठीक है, but where is the main hostess? Oh, you mean Gayatri? Yeah. वो एक्चुअली माँ आशापुरा की पूजा कर रही थी। आती होगी एनी मोमेंट। माँ आशापुरा? Well, माँ आशापुरा एक इंडियन गॉडेस का नाम है जो सभी की आशाएं पूरी करती है। Another Indian goddess? I must tell you, हम सिर्फ कर्मा में बिलीव करते हैं। कर्मा is the key to progress. I don't agree with you, Mr. John. धर्म के अंकुश के बिना कर्म ऐसा मदमस्त हाथी है जो सर्वनाश कर सकता है। आप लोगों के अंधे कर्मों ने इतनी तरक्की की कि आज पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी हुई है, थैंक्स टू एटम बॉम्ब। लेकिन हम ऐसे नहीं करते, हम अपने हर कर्म पर धर्म की नजर रखते हैं। नमस्ते, मैं मिसेस गायत्री पटेल। मिस्टर जॉन, यही है मेरी पत्नी। क्यों, है ना खूबसूरत? सिर्फ बेवकूफ लोग ही खूबसूरत औरतों के साथ बहस कर सकते हैं। पर मैं समझता हूँ कि आप मुझे अक्लमंद समझे। आपकी हिंदी तो बहुत खूबसूरत है। और मैं खूबसूरत डांस भी कर सकता हूँ। मिस्टर शांतनु, क्या मैं आपके खूबसूरत बीवी के साथ डांस? हाँ, ऑफ कोर्स, प्लीज गो अहेड। प्लीज डोंट माइंड। हिंदुस्तानी औरतें सिर्फ अपने पति के साथ ही डांस करती हैं। Excuse me, may I dance with you? Oh, why not? Sure. Mr. John? Oh, sure.
सर, आपके लिए लजीज हिंदुस्तानी खाना। लाजीज मींस यमी एंड डिलीशियस। ट्राई ट्राई। पहले महिलाएं। नो थैंक्स, आज मेरा व्रत है। आई मीन फास्ट। श्रीमती पटेल, लीजिए ना प्लीज। मैं तो अब इतना कह रहे तो खा लो ना। प्लीज आप बुरा मत मानिए, मैं आज कुछ नहीं खा सकती। ये व्रत यानी साधना होती है, अपनी इच्छाओं को काबू में रखने का एक तरीका। एक और इंडियन हैंगअप। पता नहीं आप इंडियन लोग कैसे मन मार के जीते हैं। ये अंग्रेज भी कमाल है गायत्री। हमारी श्रद्धा और भक्ति को अंधविश्वास समझते हैं ये उनकी श्रद्धा है। वेरी वेल सेड स्वीटहार्ट। कितना अच्छा सोचती हो। आज मेरा पूरा व्रत है। अरे ये क्या व्रत लगा रखा है तुमने? एक तो व्रत के नाम पर तुम लेट आई, फिर मिस्टर जॉन के साथ डांस नहीं किया और खुद भी खाना नहीं खाया। आई वाज सो एम्बैरेस्ड। ये क्या बात हुई? मैं जितना तुम्हें और तुम्हारी श्रद्धा को समझने की कोशिश करता हूँ गायत्री, उतना ही तुम कुछ नए नए नियम ले आती हो। तुम अपनी भक्ति और श्रद्धा को हमारे रिश्ते पर लादने की कोशिश क्यों करती हो? आप समझने की कोशिश कीजिए ना। क्या समझूं मैं? हाँ, ये समझूं कि मेरा तुमसे आज की रात को प्यार करना गुनाह है, या फिर ये समझूं कि मेरे अरमानों को जलाते रहने से तुम्हारी श्रद्धा के दिए जल उठेंगे? मैं तुम्हारे लिए कितना बदल गया, पर तुम मेरे लिए जरा सी भी नहीं बदल पाई। अरे मैंने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। और अब तुमने शुरू कर दिया व्रत के लिए ब्रह्मचर्य। अरे ब्रह्मचर्य का पालन करना था तो शादी क्यों की तुमने मुझसे? आर यू लिस्निंग गायत्री? मिस्टर जॉन ने ठीक कहा था, ओल्ड फैशन इंटेलिजेंट दकियानुसी हो तुम और तुम्हारी श्रद्धा। बट व्हाई मी, डैम इट, व्हाई मी? शादी के रिश्ते को तुम कभी समझ नहीं पाई। शांतनु, आज आप मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैंने पार्टी में खाना नहीं खाया, मिस्टर जॉन के साथ डांस नहीं किया, और तो और मैंने आपको प्यार करने से भी मना कर दिया। बस मेरा इतना ही गुनाह है ना कि मैंने माँ के लिए व्रत रखा है। मगर आप शायद भूल गए, एक व्रत आपने भी तो रखा था। मातानुमढ़ में माँ के मंदिर के सामने आपने साष्टांग प्रणाम किया था। किस लिए किया था वो व्रत? किस लिए अपने शरीर को इतना कष्ट दिया था? मुझे पाने के लिए नहीं, अपने प्यार को पाने के लिए। और आज जब मैं आपको मिल चुकी हूँ, अगर वही साष्टांग प्रणाम आपको फिर से करने को कहा जाए, आप नहीं करेंगे, क्योंकि आज आपके मन की पवित्रता इस शहर की चकाचौंध में खो चुकी है और मैं अपनी मन की पवित्रता को खोना नहीं चाहती। हमारे भारतीय संस्कृति में हम ये मानते हैं, हम जितना ही मन को पवित्र करेंगे उतना ही ईश्वर के करीब पहुंच पाएंगे। वैसे आपका मन अब भी बहुत पवित्र है, वरना आप मुझसे ज़बरदस्ती भी कर सकते थे। एक फूल में छुपी बहार हो तुम, एक फूल में छुपी बहार हो तुम। ओह बूंद में बसी बरसात हो तुम, बूंद में बसी बरसात हो तुम। हर घड़ी जिंदगी का एक नया रंग हो तुम, हर घड़ी जिंदगी का एक नया रंग हो तुम। एक फूल में छुपी बहार हो तुम।
निगाहों ने नहीं देखा था वो सपना हो तुम, वो सपना हो तुम। मैं हैरान हूँ जिसे पढ़कर वो दास्तां हो तुम। मेरे हमराज भी हो तुम, राज़े खुदा भी हो तुम। एक फूल में छुपी बहार हो तुम, आह बूंद में बसी बरसात हो तुम। हर घड़ी जिंदगी का एक नया रंग हो तुम। एक फूल में छुपी बहार हो तुम। समाता है ये सावन जिसमें, वो बादल हो तुम, वो बादल हो तुम। गुलिस्तां ये खिला जिससे, वो बाग़बां हो तुम। मेरा जीवन भी हो तुम, और ना खुदा भी हो तुम। एक फूल में छुपी बहार हो तुम, आह बूंद में बसी बरसात हो तुम। हर घड़ी जिंदगी का एक नया रंग हो तुम। हर घड़ी जिंदगी का एक नया रंग हो तुम। अरे क्या बात है, आज सुबह सुबह तैयार होकर आखिर कौन सा रंग दिखाने जा रही है जिंदगी का आज? हाँ, ये रंग आपके लिए नहीं, मिस्टर जॉन के लिए है। मिस्टर जॉन? मैं उन्हें ये समझाना चाहती हूँ कि इंडियन औरतें सिर्फ यही नहीं जानती कि सब्जी में तेल और मसाला कितना डाला जाता है, बल्कि ये भी जानती हैं कि बिजनेस की बारीकियाँ क्या है। वेल, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। आखिर तुम भी तो हो गोल्ड मेडलिस्ट इकोनॉमिक्स में। हाँ नेक काम में देरी क्यों, चलें? एंड वी आर गेटिंग लेट। चलो स्वीट हार्ट। आई एम सॉरी, तुम्हारा क्या? तो व्रत है ना? वैसे आज सुबह ही मेरा व्रत टूट चुका है। क्या कहा तुमने? व्रत टूट चुका है? अरे पहले बताना चाहिए था ना। एक मिनट। हाँ, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? So the dealers conference is on the 15th. हेलो एवरीबॉडी। हेलो मिस्टर जॉन। हेलो श्रीमती पटेल। स्ट्रेंज सरप्राइज, आज पूजा घर के बदले यहाँ। कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम काम भी पूजा की तरह करते हैं। So let's start the meeting. हम अमेरिकन्स का बिजनेस करने का अंदाज ही कुछ अलग है। पहले हम प्रतिस्पर्धा को मिटा देते हैं। यहाँ की जो छोटी मोटी कंपनियां हैं उनको भी खत्म कर देते हैं। उसके बाद अपनी बादशाहत को फैलाते हैं एंड सारी मार्केट में राज करते हैं। एंड दैट्स द विनर्स वे। क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? आप कहना चाहती है बिजनेस के बारे में? सुना है कि
बाजार में मंदी आई मीन रिसेशन चल रहा है। हाँ, सही सुना है श्रीमती पटेल। कुछ बुरा समय तो चल रहा है, कुछ बड़ी कंपनियों को नुकसान भी हुआ है। इस मंदी के दौर में भी ये बड़ी कंपनियां किसके बल पर चलती हैं? बल पर? मैं नहीं मानता। देखिए, जैसे ये हाथ हमारे शरीर का एक हिस्सा है, वैसे ही ये छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियों का एक हिस्सा है। और ये छोटी कंपनियां जिन्हें आप मिटाने पे तुले हैं, उन्हीं की वजह से ये बड़ी कंपनियों को अच्छे वर्कर्स मिलते हैं। बट ओनली वर्कर्स। यही छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियों के लिए नया बाजार बनाती हैं, उधार का माल देकर उन्हें जिंदा रखती हैं, और यही उनके लिए नींव का काम करती है। बात तो ठीक है, बट वी प्ले टू विन एंड वी कांट विन अनलेस द कॉम्पिटिटर्स लूज। एक बात कहूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा। 400 साल पहले भी ऐसे ही आपके जैसे लोग यहाँ पर आए थे और व्यापार के नाम पर हमें 400 साल की गुलामी देकर गए। हम भी जीतना चाहते हैं, लेकिन किसी को रौंद कर नहीं। हमारी फिलॉसफी है जियो और जीने दो। अब क्या कहेंगे आप मिस्टर जॉन कि इंडियन वुमन ओल्ड फैशन, इंटेलिजेंट या फिर दकियानूसी? क्या कहते हैं? तौबा तौबा। कहीं आपका ये स्टेटमेंट अमेरिका जाकर बदल तो नहीं जाएगा ना? अमेरिका जाकर भी नहीं बदलूंगा, आई प्रॉमिस। Sir, urgent call from America. Hello? Sir, your wife has been arrested. A man came out of the car and was killed. We need to find an eyewitness who can prove her innocence. You must come back immediately. Oh my God! I'm coming. I'm coming. क्या हुआ मिस्टर जॉन? मेरे वाइफ की कार के नीचे एक आदमी मर गया। मुझे जल्दी वापस जाना होगा। एक काम कीजिए मिस्टर जॉन, अपने लॉयर को फोन कीजिए। आई थिंक वो सब कुछ संभाल लेगा। उसी से तो बात कर रहा था। वो कह रहा था जल्दी आओ, वो विटनेस ढूंढने होंगे। पीयूष, मेरा टिकट कंफर्म करा दो प्लीज। प्लीज। देखिए मिस्टर जॉन, कल इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है, आप अटेंड कर लीजिए, उसके बाद विल अरेंज फॉर योर ट्रिप। व्हाट इन्वेस्टर्स? मेरी वाइफ की जान पर बनी हुई है और आपको इन्वेस्टर्स की पड़ी है। नो मिस्टर जॉन, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, पर आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर इन्वेस्टर्स बैकआउट कर गए तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और बिजनेस वर्ल्ड में जो हमने इतनी इज्जत कमाई है, उसका क्या लोग हंसेंगे हम पर? पटेल इंडस्ट्रीज विल बी जस्ट वाइप्ड आउट। I don't care. You Americans are so unprofessional. Shut up and go to hell. Mr. John, there is something called business ethics. शांतनु, इन्हें जाने दीजिए ना। तुम समझते नहीं हो गायत्री, he is behaving irrationally. देखिए, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाकर उन्हें सिचुएशन समझाएंगे तो वो जरूर समझेंगे। और वैसे भी माँ आशापुरा हमारे साथ है ना, वो सब ठीक कर देंगी। माँ? विश्वास रखो। मिस्टर जॉन, आप अपने आप को संभालिए। देखिए, हम आपकी वाइफ के लिए प्रेयर करेंगे। Okay, I'll go to church. चर्च में तो आप हमेशा जाते हैं, आज माँ आशापुरा के पास चलिए, वो सब ठीक कर देंगी। माँ आशापुरा? हाँ, माँ आशापुरा के दरबार से कोई मायूस नहीं लौटता है। यहाँ बैठिए, ये माँ आशापुरा है। इनसे सच्चे मन से जो भी प्रार्थना करेगा, उनकी सब आशाएं पूरी होंगी। माँ, जॉन भैया और उनकी पत्नी पर आए हुए संकट से उन्हें मुक्त कर दीजिए। जय माँ आशापुरा। Yeah. Mr. John, please. Well, he has gone to the airport. There's good news, sir. What? His wife is cleared of all charges. That's great. Thank you very much. Yes, John, you are not going anywhere. Excuse me, Mr. John. Yes. I've got some good news for you and me as well. अभी आपके अटर्नी का फोन आया था, वो कह रहा था कि जिस आदमी ने ये एक्सीडेंट होते देखा वो पुलिस स्टेशन पहुंच गया और उसने बयान भी दे दिया है कि आपकी वाइफ की कोई गलती नहीं थी। इनफैक्ट जो आदमी मर गया था वो शराबी निकला और नशे की हालत में अचानक गाड़ी के नीचे आ गया और मर गया। I don't believe it. Immigration form ले आओ। Okay, I swear on गायत्री। No. आप मुझे रोकना चाहते हैं? मिस्टर जॉन, एटलीस्ट फॉर माँ आशापुरा से बिलीव मी, आप चाहे तो अपने अटर्नी के साथ क्रॉस चेक कर सकते हैं। मिस्टर शांतनु। हाँ? बात हो गई मिस्टर जॉन? मेरी सारी जिंदगी में कभी देखा न सुना। वैसे कई बार गवाह आते हैं मगर देर से, लेकिन मेरे इस केस में प्लेन आने से पहले ही ये सब आपकी वाइफ के प्रेयर की वजह से हुआ है। मैं माँ आशापुरा को
धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो फिर घर चलें अब? ये Congratulations, Mr. John. Ma Ashapura has saved your wife. Thank you, Gayatri. It is all because of you and your prayer. मेरी वजह से नहीं, माँ आशापुरा की वजह से हुआ है। मुझसे एक वादा कीजिए, आप माँ आशापुरा के दर्शन करने के लिए मातानुमठ जरूर जाएंगे। मैं जरूर जाऊंगा। जय माँ आशापुरा। तुम नेहा के लिए दूध गर्म करके लेकर आओ। जी अभी लाती हूँ। अरे ले 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 मेरी स्वीट लिटिल एंजल को क्या हुआ? बुखार आया। बुखार? बुखार को तो बेटे हम यूं भगा सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि हमारे पास एक मंत्र है। मंत्र? हाँ, ये मंत्र अगर तुम पढ़ोगी ना तो शाम तक बुखार गायब हो जाएगा। अब ये मंत्र तुम मेरे साथ बोलो। फीवर फीवर गो अवे। बोलो बोलो। फीवर फीवर गो अवे। ब्रिंग मी लव एंड जॉय। ब्रिंग मी लव एंड जॉय। और अगर आप ये करोगी तो शाम को वापस आते वक्त हम आपके लिए खूब सारी चॉकलेट्स लाएंगे, खिलौने लाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। एंड नाउ सिंस आई एम गोइंग टू द ऑफिस, मुझे एक स्माइल दो। ये नहीं, मुझे निया वाली स्माइल। दैट्स बेटर। बाय डॉल। बाय। बाय दीदी। बाय। Fever fever go away, bring me love and joy. Fever fever go away, bring me love and joy. Fever fever go away, bring me my dad. क्या बोला बेटा आपने? Fever fever go away, bring me my dad. हेलो, मैं इंस्पेक्टर देवेंद्र। Fever go away, bring me my dad. Bring me my dad. Bring me my dad. Dad? Dad? Daddy? Bring me my dad. नेहा बेटी। Dad? ना बेटी, ना ना, लेटी रहो। देवेंद्र? उठा मत बेटे, ना। क्या हो गया मेरी गुड़िया को? डैडी डैडी, आप कहीं भी जाओगे ना तो मुझे साथ लेकर जाना। हाँ बेटी। पता है मामा ने बोला कि फीवर फीवर गो अवे, ब्रिंग मी लव एंड जॉय बोलो, तो मैंने बोला फीवर फीवर गो अवे, ब्रिंग मी माय डैडी, तो आप आ गए। हाँ बेटी, अब मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। डैडी पता है, अब मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बताऊंगी कि ये मंत्र पढ़ने से सब कुछ मिल जाता है। हाँ बेटी, अच्छे बच्चे जो भी मांगते हैं उन्हें वो मिल जाता है, और तुम्हारे लिए बेटी मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं, घर जवाई बनना भी। उर्मिला, देखा देवेंद्र के आते ही नेहा कैसे खिल गई। मैं अब भी कहती हूँ, अगर देवेंद्र अपना स्वाभिमान छोड़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं अपनी मम्मी का घर छोड़ सकती। लेकिन मैं, बुखार तो उतर जाएगा, लेकिन जो जख्म आप इस मासूम दिल को दे रहे हैं वो जिंदगी भर नहीं उतार पाएंगे। टूटे हुए घरों के बच्चे जिंदगी भर टूटे हुए रहते हैं। मेरी बात मानिए, आप लोग मम्मी के आने से पहले यहाँ से चले जाइए। पर मम्मी का गुस्सा। जो कोई भी अपनी ज़िंदगी संवारना चाहता है, माँ आशापुरा उसकी ज़िंदगी ज़रूर संवार देती है। उर्मिला, अगर आप आज यहाँ से नहीं जा पाई तो ज़िंदगी भर नहीं जा पाएंगी। रूठी हुई ज़िंदगी को मनाने का मौका बार बार नहीं मिलता। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग जल्दी यहाँ से चले जाइए इस मासूम की ज़िंदगी के लिए। मम्मी, नेहा बेटी। नेहा, उर्मिला, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। कहाँ हो तुम लोग? जी वो तो चले गए दामाद जी के साथ। देवेंद्र के साथ?
उसके साथ जाने की हिम्मत कैसे हुई उनकी? मुझसे बगैर पूछे वो लोग इस घर से जा ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। सासू माँ, वो जा चुके हैं। क्या? हाँ, मैंने ही उन्हें उनके अपने घर भेजा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तो बस एक उजड़े हुए घर को बसाने की कोशिश की है। मैंने उन्हें वहाँ भेजा जहाँ नेहा की बीमारी का सही इलाज है। बकवास बंद करो, सब समझती हूँ मैं। तुम इस घर में मेरा अधिकार छीनना चाहती हो, मालकिन बनना चाहती हो इस घर की, लेकिन मैं तुम्हें कोई चाल नहीं चलने दूंगी। क्या हुआ केसर? क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? अच्छा हुआ आप आ गए। देख लिया इसने क्या किया? क्या किया? इसने उर्मिला और नेहा को घर से निकाल बाहर किया। जी नहीं, निकाल बाहर नहीं किया है। मैंने तो उन्हें उनके अपने घर भेज दिया है, देवेंद्र के साथ। अरे ये बहुत अच्छा। बहुत अच्छा? अच्छा नहीं किया, नहीं किया, बहुत बुरा किया। बिल्कुल। मम्मी एक मिनट, हाँ मैं अभी दीदी की खबर लेकर आता हूँ। हेलो दीदी, तुम मम्मी को बिना पूछे यहाँ से गई क्यों? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, इसी वक्त यहाँ वापस चली आओ। बिल्कुल मत आना, तुमने बहुत अच्छा किया मम्मी को सुनाने के लिए। मैं बकवास कर रहा हूँ। क्या नहीं आ सकती? मम्मी आप बात करो इससे, मेरी बात नहीं मानती। उर्मिला वापस आ जाओ। नहीं मम्मी, मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, अब भी वापस आ जाओ। हमें अपनी जिंदगी जीने दो मम्मी। उर्मिला, ये क्या कह रही है तू? अब यही मेरा घर है मम्मी। उर्मिला, देख लिया? अरे कहाँ चले गए सब लोग? गायत्री, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। गायत्री देखो, तुम मायूस मत हो, मम्मी तो गुस्से में। मैंने तो बस इस घर की खुशी चाही थी। मैंने ऐसा क्या गलत किया? तुमने कुछ गलत नहीं किया। इनफैक्ट उर्मिला को वापस भेजकर तुमने बहुत अच्छा काम किया है। दरअसल मैं भी यही चाहता था, पर यह काम मैं और डैडी दोनों मिलकर नहीं कर पाए। रही बात मम्मी की, उनका गुस्सा तो पल दो पल का मेहमान है। शुरू से उन्होंने इस घर को अपनी मर्जी से चलाया है। शायद इसी वजह से उन्हें ये बात पसंद नहीं आई होगी। और अरे अरे गायत्री, गायत्री क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाऊं गायत्री? शांतनु, शांतनु बेटे, क्या ये खबर सच है? मैं दादी बनने वाली हूँ, तो बाप बनने वाला है बेटा? हाँ माँ, हाँ। अरे चुप चुप जियो मेरे लाल। And माँ, I'm so excited। इसी खुशी में मैंने ऑफिस जाना कैंसिल कर दिया है। ऑफिस? गायत्री, हाँ अब ऑफिस बंद, काम काज बंद। आज के बाद मुझे हर वक्त तुम यहीं आराम करती हुई नजर आनी चाहिए, समझी? जी। अपने पोते को मैं इतने लाड़ प्यार से बड़ा करूंगी कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। मम्मी जी, अगर लड़की हुई तो? हाँ? लड़की? लड़की का क्या काम है इस घर में? वंश लड़के से आगे बढ़ता है। मुझे लड़का चाहिए और लड़का ही होगा। मैं इनको भी बता के आती हूँ। सुनिए, कहाँ हैं आप? लेकिन मुझे तो सिर्फ लड़की चाहिए, और वो भी तुम्हारे जैसी प्यारी सी, जिसमें जीवन की खुशबू हो, जो गंगा जैसी निर्मल हो और कुदरत जिसकी दीवानी हो। जो भी आए माँ का आशीर्वाद होगा। गायत्री, मैंने तुम्हारी इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट कर ली हैं। That's terrific। अब आप जल्दी से खुशखबरी भी दे दीजिए डॉक्टर। आई एम सॉरी मिस्टर पटेल, पर गायत्री प्रेग्नेंट नहीं है। What? ये क्या कह रही हैं आप? होता है कभी ऐसे, मेडिकल टर्म्स में इसे साइकोलॉजिकल प्रेगनेंसी कहते हैं। कभी कभी कुदरत भी कैसा मजाक करती है इंसानों के साथ। एक्सक्यूज मी, मुझे आप लोगों से कुछ खास बात करनी है, प्लीज। जी कहिए। गायत्री, अकॉर्डिंग टू योर रिपोर्ट्स, तुम कभी माँ नहीं बन सकती। मैं कभी माँ नहीं बन सकती? हाँ, ऐसा कैसे कह सकती हैं आप? There must be some confusion, doctor. Why don't you just cross check your reports? I'm sorry, Mr. Patel. There is no confusion. गायत्री के फेलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेजेस हैं। Gayatri's fallopian tubes are blocked. They cannot conceive. 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 They cannot conceive.
पर उसका कोई तो इलाज होगा ना? आई एम सॉरी मिस्टर पटेल, इसका कोई सक्सेसफुल इलाज नहीं है। वैसे भी 100 में से 15 औरतों को ऐसी प्रॉब्लम्स होती ही हैं। गायत्री, तुम माँ नहीं बन सकती, इसका ये मतलब नहीं तुम्हें कोई कमी है। यू आर स्टिल अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। गायत्री, दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सलूशन ना हो। और देखो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं ना, ये प्रॉब्लम तो क्या, दुनिया की कोई भी मुसीबत तुम्हें छू तक नहीं सकती। शंतनु, अरे आ गया बेटा। अच्छा हुआ बेटा तू आ गया। आने वाले नए मेहमान की खुशी में हम एक शानदार पार्टी दे रहे हैं। आखिर पटेल घराने का वारिस आ रहा है, सारे शहर को पता तो चले। मम्मी वो अरे ये क्यों इतना शर्मा रही है? डैड मॉम, गायत्री प्रेग्नेंट नहीं है। और डॉक्टर ने कहा है कि वो अब कभी माँ नहीं बन सकती। ये तो क्या कह रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे साथ इतना बड़ा धोखा। दो महीने हो गए डॉक्टर शाह, सारे टेस्ट करा लिए, अभी तक कोई गुड न्यूज नहीं। आई एम सॉरी, पर सारे टेस्ट फिर से नेगेटिव आए हैं। तो प्रेग्नेंट होने की उम्मीद? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बांझ तो बांझ ही रहेगी। पत्थर पे फूल उगे हैं कभी? मेरी ही किस्मत में आनी थी। हाँ। गायत्री, और कितनी पूजा करोगी? ये भक्ति का नाटक किस लिए? ये पवित्रता का ढोंग किस लिए? मम्मी जी, ये सब आप क्या कह रही हैं? अगर तुम्हारी भक्ति में शक्ति होती तो इस घराने का वारिस कब का आ चुका होता। अब बस भी करो ये सब नाटक। मुझे तो ये सब कुछ ढकोसला लगता है। ये भक्ति, ये शक्ति। लगता है इसे अभी तक अकल नहीं आई है। रजनी, रजनी जी, इसे कहो यहाँ से रास्ता ना पे। अब इस घर में मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। आप यहाँ पर? माँ आशापुरा तेरा भला करे बेटी। धन्य है माँ, जो इस मुसीबत की घड़ी में आपको यहाँ भेज दिया। लेकिन ये कैसी परीक्षा है बाबा? आज तक मैंने जो भी किया
माँ के कॉल से ही किया। तो फिर इस बार क्यों माँ मुझे बेसहारा छोड़ दिया बाबा? बेटी, माँ किसी को बेसहारा नहीं छोड़ती। ये तो कर्मों का फल है जिसे हर मनुष्य ने भोगा है। सीता मैया ने भोगा, सावित्री ने भोगा। कर्म की इस चक्की में हर कोई पिसा है। कर्म की इस चक्की में पिसने के लिए मैं भी तैयार हूँ बाबा, मगर मेरे पति और मेरे ससुराल वालों को इतना दुख क्यों मिल रहा है बाबा? एक बात याद रख, यदि शंतनु का वंश बढ़ा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु? मेरे पति की मृत्यु? अगर मेरे संतान के आने से मेरे पति की मृत्यु निश्चित है, तो फिर माँ ने मुझे कॉल ही क्यों दिया? ये तेरे कर्मों का फल नहीं बेटी, ये केसरबेन के कर्मों का फल है। सासू माँ की? हाँ, अब या तो अपने संतान का मुख देखे या अपने पोता पोती का। मेरा ससुराल शाप मुक्त कैसे होगा? केसर को प्रायश्चित करना होगा, केसर को प्रायश्चित करना ही होगा। गायत्री तो ऐसी बेटी जो करे उस शाप है। जय मां आशापुरा। बाबा, बाबा, आपने सुना और मुझे सुना रहे हो? मुंह नहीं नोच लिया अपने लाडली बहू का? केसर, गायत्री सच बोल रही है। तुम्हें अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। ऐसे घिनौने इल्जाम लगा रही है वो मुझ पर। इल्जाम वो नहीं लगा रही है मम्मी, वो तो सिर्फ एक साधु बाबा की भविष्यवाणी बता रही है। कौन से साधु बाबा? वो माता नुमाड़ वाला पागल भिखारी जो इधर उधर भटकता रहता है, बकवास करता है। ऐसा मत बोलो प्लीज मम्मी, उनकी सैकड़ों भविष्यवाणियां सच साबित हुई है। क्यों ना बोलूं? क्या मैं नहीं समझती उसकी चाल? खुद तो बच्चा पैदा नहीं कर सकती है और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। अगर मैंने इस घर का वारिस मांग लिया तो क्या गुनाह किया? समझती क्या है वो अपने आप को? बांझ। केसर, बार बार उसका दिल मत दुखाओ। क्यों ना दुखाऊं? उसने मुझे शाप कहा और मैं चुप रहूं? मैं भी उसको उसका आईना दिखाऊंगी। मुझे इस घर में बच्चा चाहिए, मेरे बेटे का खून, मेरे अंश का वंश। अगर पैदा कर सकती है तो करे, वरना मैं शंतनु की दूसरी शादी करूंगी। मम्मी, बड़े घरों की यही रिवायतें होती हैं। केसर पूरी रात तड़पती रही। दुख तो यह है कि इस सच्चाई को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उसे हर हालत में तुम दोनों का बच्चा चाहिए। डैड, आप तो जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है बेटे। तुम्हारा अंश और गायत्री का अंश अगर लेबोरेटरी में मिला दें। यू मीन टेस्ट ट्यूब बेबी डैड? एग्जैक्टली। मेरे एक दोस्त के बेटे के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसकी बीवी को भी वही प्रॉब्लम था जो अपनी गायत्री को है। अब तो उसका टेस्ट ट्यूब बेबी यानी वो बच्चा पूरे 5 साल का है और वेरी हेल्थी चाइल्ड। अगर ऐसा हो गया तो मम्मी की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और गायत्री को भी माँ बनने का गौरव मिल जाएगा। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। क्यों गायत्री? मम्मी जी के दिल का हाल तो मैं भी समझती हूँ, पर टेस्ट ट्यूब बेबी तो हमारे ही शरीर का अंश है और हमारे शरीर के अंश के आने से ही इनकी जान को खतरा है और मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। देखो गायत्री, मुझे कुछ नहीं होगा। आप? मम्मी पूरी तरह से टूट चुकी है। उन्हें हर हालत में अपना ही वारिस चाहिए। उन्हें समझने की कोशिश करो। पर मैं ये नहीं मान सकती। देखो बेटी, अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं मांग रहा, बस इस घर को बचाने के लिए मान जाओ। मां आशापुरा पर मेरा पूरा विश्वास है, वही हमें इस संकट से बचाएगी। माँ, अब हमारी लाज तेरे ही हाथों में है, तू ही रक्षा करना। टेस्ट ट्यूब बेबी की एक्सी प्रक्रिया में पहले हम स्त्री को हार्मोन का इंजेक्शन देकर स्त्री बीज ले लेते हैं, फिर पुरुष के शुक्राणु प्राप्त करते हैं और जो शुक्राणु सबसे गतिशील हो उसे हम सिलेक्ट करते हैं और उस गतिशील शुक्राणु को स्त्री बीज में प्रवेश कराते हैं। फिर 2 या 3 दिन के लिए शुक्राणु स्थित
स्त्री बीज को इस इंक्यूबेटर में रखा जाता है, जिसका वातावरण हूबहू स्त्री की कोख जैसा होता है। अब ये गर्भ बनने के लिए तैयार है। मिसेस पटेल, अगले 2 दिनों में गर्भ का निर्माण होते ही उसे आपके गर्भाशय में इंजेक्ट कर देंगे और बस फिर आप माँ बनने के लिए तैयार हो जाएंगी। ऑल द बेस्ट मिसेस पटेल। थैंक यू डॉक्टर। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने आपको पहले ही कहा था ना, अगले 48 घंटे आपके लिए घातक है। प्लीज आप घर छोड़ के कहीं मत जाइए। ये क्या बचपना है? हाँ, मुझे कुछ नहीं होगा गायत्री, तुम बेकार में चिंता कर रही हो। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। देखिए, जो तकदीर में नहीं है उससे पाने के लिए मैं आपको नहीं खोना चाहती। देखो, मेरा विश्वास करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गायत्री, आखिर कब तक मुझे अपने ही घर में बंदी बनकर रहना पड़ेगा? हाँ, जब तक मुझे विश्वास ना हो जाए कि आपकी जान पर बना खतरा टल चुका है। शांतनु, शांतनु, कहिए डॉक्टर निवेदिता, क्या गुड न्यूज देने वाली थी आप? टेस्ट ट्यूब बेबी का गर्भ बन चुका है। आप टेक्निकली दादी बन गई है मिसेस पटेल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। रजनी, जा मिठाई ले आ। अरे पटेल घराने का वारिस आ रहा है, आज से तुम्हारी तनख्वाह दुगनी। शांतनु का भैया का एक्सीडेंट हो गया है। आखिर मुझे लगा श्राप मेरे बेटे पे आ ही गया। केसर, केसर क्या हुआ? केसर संभालो, केसर।
माँ बेटे अब खतरे से बाहर हैं। हाँ, सच? दे आर आउट ऑफ डेंजर। थैंक यू डॉक्टर। लगता है किसी की दुआ में बहुत असर है। हाँ, थैंक यू वेरी मच। दीदी वो आ गए। गायत्री आ गए। एक न एक दिन सबको आना पड़ता है माँ के दरबार में। गायत्री, गायत्री बेटी, बेटी आंखें खोलो, आंखें खोलो ना बेटी। जीवन भर जिसने अपनी आंखें बंद रखी, अब तो उसकी आंखें भी खुल चुकी है भाभी। अब तो आंखें खोलो, खोलो भाभी। बेटी, तू तो हमेशा से अपनी आंखें खुली रखा करती थी। देख, देख, आज माँ अपनी अनगिनत आंखों से तुम पर प्रेम बरसा रही है। देख। गायत्री, आंखें खोल बेटी, माँ ने तेरी सुन ली है। देख, देख शंतनु वापस आ गया है, वो तेरे को लेने आया है। गायत्री, गायत्री, तू तो तन मन से सबकी सेवा करती थी, सबकी बात सुनती थी। आज एक बार और सुन ले। गायत्री, आंखें खोलो गायत्री। जो भाग्य में लिखा रहता है वही हम सबको स्वीकार करना चाहिए। बाकी सब माँ की कृपा पर छोड़ देना चाहिए। आज हम सबको ये बात समझ में आ गई है। आंखें खोलो गायत्री। जय मां आशापुरा, तेरी महिमा अपरंपार है। मेरे कर्मों के लिए तुमने प्रायश्चित किया और माँ ने मेरे बेटे और हमारे वंश को जीवन दान दिया। तुम सचमुच माँ की बेटी हो। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। नहीं माँ, माँ, आज माँ के दरबार में तुमने मुझे माँ कहकर बहुत बड़ा एहसान किया। ऐसा मत कहिए माँ, ये एहसान तो मेरी इस माँ का है जो मेरे कदम कदम पे, हमारे कदम कदम पे साथ है। जय मां आशापुरा। अरे मिस्टर जॉन, आप, और वो भी मातानु मठ में? कहा था ना वापस आऊंगा। अब तो हर साल नवरात्र में इंडिया आऊंगा। क्या बात है। I'll also come and pray to Ma Ashapura. ये मेरी धर्म पत्नी एंजेला है। नमस्ते। नमस्ते। जितने देखे ना सुने उतने माँ के हाथ, हर जनगण पर वो करे ममता की बरसात। चहु दिशा को छान कर जब कटे न दुख के पात, माता नु मड़ आइए, सच होगी मन की आस, सच होगी मन की आस, सच होगी मन की आस। जय मां आशापुरा, जय मां आशापुरा, जय मां आशापुरा। हर आशा बिन मांगे तू पूरी करती है माँ। हर आशा बिन मांगे तू पूरी करती है माँ। ऐसी ममता से आंखें भर भर आती है माँ। आशापुरा, ओम जय जय मां आशापुरा। हो हर आशा बिन मांगे तू पूरी करती है माँ। वाली देश देवी तू, सरस्वती मंचा देवी तू, तुलजा भवानी पद्मावती तू, चंडी चामुंडा आदिशक्ति तू। हे माँ आशा,
प्रकट तू, मन के निकट तू, पल में मिटाती है सब संकट तू। सांझ सवेरे दर्शन तेरे तुझसे जुड़े हैं।